In this video, we will discuss about development of embryo and formation of seed in pinus. Now, to understand how embryo develops and ovule ripens to form seed in pinus, we have previously discussed that in case of pollen grains of pinus, these are winged pollen grains of pinus, they will germinate to form a pollen tube, and inside pollen tube two male gametes they are produced. And after pollination, these pollen grains they will fall on the ovules. And this is the mature archegonium of pinus, where the single haploid cell egg is present. This egg is called as female gametophyte of pinus. We have already discussed in the previous videos. To understand the detail, you can watch those videos. This link is shared in the description box. So this is the mature archegonium having female gametophyte, and this is the pollen tube carrying the male gamete, right? Now, these pollen tube after pollination, they will fall on the ovule. This is the ovule of pinus. Again, we have discussed the structure of ovule in detail in previous video. Now here archegonium is present. Archegonium, as we discussed, this has an egg or female gametophyte. This is the pollen tube which is carrying the male gametes. Now out of the two male gametes, one will fuse with the egg. Now when this is the female gametophyte, this is the female gametophyte and this is the male gametophyte. Now these two will fuse with each other. This is also called as syngamy or fusion of the gametes, and this will lead to the formation of zygote. So male and female gamete, they fuse with each other. Male gamete is haploid, female gamete is haploid, and when zygote is produced, this will be diploid. Now this zygote is the first diploid cell produced here. Now this zygote will undergo mitotic cell division. Now this zygote will divide by mitotic cell division into 4 nuclei, right? Then these 4 nuclei, they will develop into 8 nuclei. So this is the 8 nucleate stage. What happens, we can see here. This is the zygote with 4 nuclei. This is the zygote with 8 nuclei. Now these nuclei, they will arrange in the form of tiers like this. Like we can see here. Nucleus, 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 nucleus. So we have seen these are two tiers of 4 cells here, right? Tiers में 4 न्यूक्लियाई नीचे हैं, 4 न्यूक्लियाई ऊपर हैं, एक पूरा टायर बना हुआ है, 4 सेल्स नीचे हैं, लेकिन ऊपर का जो टायर हम देख रहे हैं यहाँ पे वॉल नहीं है, यहाँ पर वॉल है, तो इसको हम ओपन टायर भी बोल देते हैं. Now these two tiers of 4 cells, again they will further divide. Now we can see here division will take place, and nuclei 2, 2, 4 visible, 4 on the other side, 8 nuclei are there. Now they will develop into 16, then they will develop into 32. So ultimately we will see here there are 4 tiers of 4 cells each, 4, 4, 4 and 4, right? And lower tier, this tier which is made up of 4 cells, this is called as embryonal tier. दिस विल फॉर्म एम्ब्रियो, इससे एम्ब्रियो बनेगा, इसलिए इसको एम्ब्रियोनल टायर बोलते हैं. ये सस्पेंसर टायर है जो एम्ब्रियो को कैरी करेगा. देन दिस इज़ द रोजेट टायर एंड दिस इज़ द ओपन टायर. अगेन यहाँ पर वॉल नहीं है, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट टायर भी बोलते हैं. अब ये जो ओपन टायर है या रोजेट टायर है, इनका काम है नरिशमेंट देना, न्यूट्रिशन देना, इसको हम न्यूट्रिटिव लेयर भी बोलते हैं. और ये जो लोअर टायर है, इससे क्या बनेंगे, एम्ब्रियो बनेंगे. सो ये वाला जो है, इसको हम प्रो एम्ब्रियो भी बोलते हैं. जो अभी एम्ब्रियो बनाएगा उसको हम प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं. अब नाउ वी कैन सी हियर, ये जो 4 एम्ब्रियोनल टायर में सेल्स हैं, ये सेपरेट होने शुरू हो गए लाइक दिस, राइट. सो इसको हम 4 एम्ब्रियो जो है, यहाँ से 4 इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो बनेंगे. 4 इंडिपेंडेंट, अगर एक ज़ाइगोट से हमारे पास ज़्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं, 4 इंडिपेंडेंट एम्ब्रियोज बन रहे हैं, सो फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो, दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रायनिंग. बिकॉज ये सेपरेट होके बना रहे हैं, क्लीव होके बना रहे हैं, अलग होके बना रहे हैं,
So this is also called as cleavage polyembryony. Sometime ये जो रोजेट सेल्स हैं, रोजेट टायर के सेल्स हैं चारों, इनसे भी एम्ब्रियो बन सकता है. अगर इनसे एम्ब्रियो बनेगा तो इनको हम बोलेंगे रोजेट एम्ब्रियोज, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रोजेट पॉलीएम्ब्रायनी. सो अल्टीमेटली हमने देखा कि 4 न्यूक्लियाई बने, फिर 8 बने, फिर वो अरेंज हो गए इन 2 टायर्स ऑफ 4 सेल्स. फिर फर्दर उनके 16 न्यूक्लियाई बने और हमारे पास 4 टायर्स बन गए. लोअर टायर को हम एम्ब्रायनल टायर बोलते हैं, बीच वाले को सस्पेंसर, रोजेट, और जहाँ पे वॉल नहीं है इसको हम ओपन टायर बोलते हैं. अब ये जो चारों एम्ब्रियो वाले सेल्स हैं, जिसको हम इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो भी बोलते हैं, वो सेपरेट हो रहे हैं. अब ये जो सेल्स हैं ये सस्पेंसर बनाना शुरू कर देंगे. तो हम देखेंगे ये एम्ब्रायनल टायर है और ये ट्यूब्स बन रही हैं जो एम्ब्रियो को कैरी करेंगी. और ये जो पहले सस्पेंसर सेल्स हैं उनको प्राइमरी सस्पेंसर बोलते हैं, और ये रोजेट टायर. तो हमारे पास ये टायर्स हैं जो फर्दर डेवलप हो रहे हैं या डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं. अब फर्दर फिर से चेंजेस आएंगी. तो यहाँ पर आप देखोगे जो नीचे हमारे पास थे 4 एम्ब्रियो वाले सेल्स, जिससे हमने कहा था कि 4 अलग अलग एम्ब्रियो हैं ऐसे. अब ये फर्दर एक सेल जो है दिस विल फर्दर डिवाइड टू फॉर्म मैनी सेल्स. तो यहाँ पे एक एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक एम्ब्रियो बन गया, ये अलग एम्ब्रियो बन गया, ये अलग एम्ब्रियो बन गया, ये अलग एम्ब्रियो बन गया. तो ये जो एम्ब्रायनल सेल्स है इनसे एम्ब्रियो बनने स्टार्ट हो गए. और ये जो एम्ब्रायनल ट्यूब है ये वाली जो है जो इनको कैरी, हर एक एम्ब्रियो को अपने ऊपर कैरी कर रही हैं. तो हम देख रहे हैं कि एक जो है, मैं इसे मूव कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि इसके ऊपर ये एम्ब्रियो बॉर्न है. अगला अगर हम देखेंगे तो ये वाला, इसके ऊपर भी एम्ब्रियो बॉर्न है. अब इससे पीछे एक आ रही है ट्यूब, आप देख सकते हो इसके ऊपर भी एम्ब्रियो बॉर्न है. एक ये वाली ट्यूब है, इसके ऊपर भी एम्ब्रियो बॉर्न है. तो 4 एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं यहाँ पर. अल्टीमेटली जब मैच्योर होगा तो एक ही एम्ब्रियो डेवलप होगा चारों में से. और ये जो है ये कैरी कर रहे हैं, जो एम्ब्रियोनल सेल्स को कैरी कर रहे हैं या एम्ब्रियोनल ट्यूब्स को कैरी कर रहे हैं, लंबी लंबी जो ट्यूब्स हैं इनको हम बोलते हैं प्राइमरी सस्पेंसर, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रोजेट एम्ब्रियोज. तो अल्टीमेटली ये जो है पूरा यंग एम्ब्रियो जो है दिस विल डेवलप इनटू मैच्योर एम्ब्रियो. अब ये कहाँ पे हो रहा है? दिस इज़ हैपनिंग इनसाइड द ओव्यूल, यहाँ पर इस जगह पर. अब ये जो ओव्यूल है, आर्किगोनियम है, जिसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना है, यहाँ पर पूरा एम्ब्रियो बन रहा है ये, राइट. तो ये जो एम्ब्रियो है अल्टीमेटली ये मैच्योर अप हो जाएगा, और ये जो पूरा ओव्यूल है दिस विल राइपन टू फॉर्म सीड. अब हम देख सकते हैं कि ये जो फीमेल कोन होता है उसके ओवलीफेरस स्केल्स के ऊपर ये ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. सो नाउ दिस ओव्यूल हैज़ राइपन टू फॉर्म सीड. अब सीड के ऊपर भी विंग्स हैं, जैसे इसके पॉलन ग्रेन्स के ऊपर विंग्स हैं, सीड के ऊपर भी विंग्स हैं. विंग्स की वजह से दिस विल बिकम लाइट इन वेट. दिस कैन बी कैरिड और डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जब पाइनस का जो फीमेल कोन है मैच्योर हो जाता है, उसकी ओवलीफेरस स्केल्स वुडी हो जाती हैं, दे विल लूज वाटर, दे विल लूजन अप, एंड जो उसमें से सीड्स हैं वो डिस्पर्स हो सकती हैं, या आप कह सकते हैं कि वो फॉल हो सकते हैं ज़मीन पर. अगेन दे कैन जर्मिनेट. तो इसके जो ओव्यूल जो है दिस विल राइपन टू फॉर्म सीड. तो ये इसका मैच्योर सीड है पाइनस का, जिसमें ये वाला पार्ट इसका एम्ब्रियो है. बाकी हम इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है सीड का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ हाउ जाइगोट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट राइपन्स टू फॉर्म एम्ब्रियो. और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो है वो मैच्योर अप होके ओव्यूल विल राइपन टू फॉर्म सीड. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड हाउ इट जर्मिनेट्स टू फॉर्म द यंग स्पोरोफाइट. Thank you for watching my video. If you enjoyed my video, please like, share and subscribe.